کے خیال سے کون ٹیپ کروا رہا ہے فون اور اس کے بعد اس کو ریلیز کون کرواتا ہے؟ IB ISI اور پولیس کے پاس اتھارٹیز ہیں کہ بھئی یہ، اور ان کے علاوہ کون کرے گا؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ خان صاحب نے پنجاب میں صرف آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ دی ہے، تو کیا آپ نیکسٹ CM اپنے آپ کو کنسیڈر کریں؟ آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کی جائے کہ کئی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، کیا پلان ہے فیوچر میں فون نمبر چینج کرنے کا سوچا ہے یا کچھ لوگوں کو بھی ایکسپوز کرنا ہے؟ عثمان دیدار صاحب جو ہے وہ نہ 25 مئی کو نظر آئے، نہ وہ کسی بھی پنجاب کی ٹیم میں نظر آ رہے ہیں، نہ کسی کمپین میں نظر آ رہے ہیں۔ کون سا ایسا بوتل کا جن ہے ان کے پاس کہ ان کا نام ابھی بھی بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف نے ایسا خوبصورت الیکشن لڑنا ہے کہ ساری دنیا کو یاد آ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنی سیکھ لی ہے۔ السلام علیکم، پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں میر افضی شان۔ آج میں ایسی خاتون لیڈر کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے 25 مئی کو پوری پنجاب پولیس کے سامنے یہ ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں۔ ان کو آئرن لیڈی کا خطاب تو دینا تو بنتا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ PTI کی ری آرگنائزیشن اور پنجاب کو لیڈ کرتی، یعنی پنجابی کیمپینز کو لیڈ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ان سے سوالوں جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، 25 مئی کو جب آپ کی گاڑی پر اٹیک ہوا، کیا محسوس کر رہی تھیں اور کیا سوچ رہی تھیں اس وقت؟ دیکھیں، میرا خیال ہے جہاں تک اٹیک کا تعلق ہے، وجہ یہ تھی کہ 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے ہم تو ایک پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے، اور وہ لانگ مارچ کا حصہ تھا جب ہم نے کہا تھا کہ ہم نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو بیسکلی مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو احتجاج تو ہر انسان کا حق ہے، تو ہم بطور ایک سیاسی پارٹی احتجاج کر رہے تھے، اور اس احتجاج کو جس طریقے سے انہوں نے ظالمانہ طریقے سے روکنے کی کوشش کی، اس سے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ افسوس یہ ہو کہ انہوں نے 3 دن پہلے ہی لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی، لوگوں گھروں میں گھس کے، اور انہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ اور اس میں میں حماد اظہر صاحب کے گھر بیٹھی ہوئی تھی جب پہلی دفعہ انہوں نے وہاں حماد اظہر کے گھر وہ دیواریں ٹاپ کے پولیس اندر گھسی۔ اس دن تو انہوں نے مجھے نہیں اریسٹ کیا، لیکن کوشش ان کی پوری تھی۔ اس وقت ان کے پاس لیڈی پولیس نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پکڑا نہیں۔ پھر اس کے بعد مسلسل روک تھام کرنے کے باوجود انہوں نے پھر کنٹینرز لگا دیے، اور پھر جس وحشی طریقے سے انہوں نے وہاں ٹیئر گیس اور لوگوں کی مار دھاڑ کی، تو 2 گھنٹے میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھتی رہی گاڑی کے اندر سے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ لوگوں کے اوپر مطلب بے شمار ٹیئر گیس پہ کی جا رہی تھی، مطلب سانس لوگ لے نہیں پا رہے تھے اتنے۔ تو میں نے تو اپنی گاڑی آگے چلا، کیونکہ وہ جو لائن کھڑی ہوئی تھی پولیس والوں کی، اس لائن کے ساتھ آئی واز 100% شیور کہ وہاں کوئی سینئر بندہ بھی ضرور ہوگا جو یہ سارا کنٹرول کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے بات پوچھوں کہ بھئی کب تک تم یہ ظلم ڈھاتے رہو گے؟ ہم کون سی چوری چکاری کرنے لگے، کون سی دہشت گردی کر لگے تم لوگ ہمارے پہ جو یہ ظلم سارا کر رہے ہو؟ میں اس سلسلے کے اندر گاڑی آگے چلا کے لے کے گئی، اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس گاڑی پہ حملہ کیا اور ڈنڈے مارنے شروع کی، میری بیٹی میرے ساتھ تھی، میری بہن میرے ساتھ تھی، تو میری بیٹی تو نیچرلی گھبرائے چیخ رہی تھی وہ، تو میں رکی، وہاں رک کے میں نے 1 سیکنڈ کے لیے رکی کہ شاید کوئی، لیکن وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید ہمیں قتل ہی کر دیں گے، تو ہم گاڑی آگے دوڑا کے لے گئے۔ اس وقت تک انہوں نے سارے شیشے ویشے توڑ دیے تھے گاڑی کے، فرنٹ سکرین بھی توڑ دی، بیک سکرین بھی توڑ دی، سائڈ کے شیشے بھی توڑ دیے۔ وہ گاڑی جا کے آگے وہ جو شادرے سے بالکل پہلے جو ہمارا اوور ہیڈ برج ہے اس کے ساتھ جا کے میں نے جا کے روکی۔ میرے پیچھے ساری پولیس بھاگ رہی تھی، مزید پولیس کے علاوہ اور پلین کلوتھس میں لوگ تھے، مطلب سادے کپڑوں کے اندر لوگ تھے جنہوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور مار رہے تھے وہ، کیونکہ آگے زیادہ میڈیا، یہاں بھی میڈیا نے کور کیا، کیونکہ وہ جو سارا یہ سلسلہ ہے وہ سارا میڈیا کور کر رہا تھا، وہ آگے میڈیا والے مزید کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ ان کی وجہ سے بھی ایک تھوڑی سی جھجک آئی۔ تو بیسکلی آپ اسے پوچھ رہی کہ مجھے کیا محسوس ہوا، مجھے تو میں نے دل میں سوچا کہ اس عمر میں نے پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کے دوران میں اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔
मार्शल लॉ में मैंने देखे हुए हैं, 3 मार्शल लॉ से मैं गुजरी हुई हूँ ना, क्योंकि मैंने तो 2000 वो अपना पहला जलसा जलूस जो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ किया था वो 1966 में किया था, जब मेरी उम्र 16 साल थी। तब से मैं मार्शल लॉ में ज़रूर ऐसे जुल्म होते हुए देखे। जमहूरियत के दौरानिया में मैंने कभी इस तरह का जुल्म होते हुए नहीं देखा, जिस जालमाना तरीके से इन लोगों ने मार पीट लोगों को कत्ल गारत किया। 2 वर्कर हमारे फौत हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि क्या हम पाकिस्तान का यही हाल करेंगे। हम नहीं चाहते कि यहाँ जमहूरियत हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ऑडियो लीक्स के हवाले से बात की जाए, आपकी कई ऑडियो लीक्स हुई हैं, क्या प्लान है फ्यूचर में? फ़ोन नंबर चेंज करने का सोचा है या कुछ लोगों को भी एक्सपोज करना है, उनका इम्तिहान लेना बाकी है? मेरा हाल है, जहाँ तक ऑडियो लीक्स का ताल्लुक़ है, मैं ऑलरेडी कोर्ट में गई हुई हूँ। अभी तक मुझे कोर्ट से तारीख नहीं मिली। मेरे वकील ने ऑलरेडी पटिशन जमा करवाई हुई है। आप इससे ज़्यादा किसी की प्रिवेसी के अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके ऊपर बाकायदा फेयर ट्रायल का एक रूल है। उसका रूल ये है, लॉ है ये 2013 का, कि आपने अगर कोई टैपिंग करनी है, सबसे बड़ी बात है कि आप टेप किसी का या आप टैपिंग जो है वो कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो इंटीरियर का मिनिस्टर है वो जाके और पहले इजाज़त लेगा कोर्ट से कि जी मैं फ़लाँ बंदे को के टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और वजह बताएगा कि क्यों रिकॉर्ड करना चाहता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद उसने रिकॉर्डिंग जमा करवानी है वहाँ। उसके बाद जज साहब अप्रूव अगर करेंगे कि भाई ठीक है, ये इस पे इन लोगों ने तो एक तमाशा और मजाक बना लिए। इन्होंने ना किसी की प्राइवेसी छोड़ी है, ना कोई कानून छोड़ा है, हर चीज़ की धज्जियाँ उधेड़ दी हैं, और इन्होंने रोज़ाना ये ऑडियो लीक्स करके, इनका ख्याल है लोग बदगुमान बदजन हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, एक कोई गलत फहमी की दुनिया में रहते हैं। लोगों को बहुत अच्छी तरह, पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गई कि ये किस किस्म का खेल खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अदारों को कोशिश पूरी करनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की बका की बात करिए, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करिए, पाकिस्तान को तबाह करने का काम तो ना करिए ना। डॉक्टर साहिबा, इसी के साथ साथ मेरा अगला सवाल ये भी है कि ये आपके ख्याल से कौन टेप करवा रहा है फ़ोन, और उसके बाद इसको रिलीज़ कौन करवाता है? परमिशन नहीं होती ना, लेकिन इनके पास IB, ISI और पुलिस के पास ये अथॉरिटीज़ हैं कि भाई ये करें, तो और इनके अलावा कौन करेगा? ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए लोगों की। घरों की प्राइवेट कॉल्स जो हैं वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करके किससे इजाज़त ली आपने? किन दहशतगर्दों को आप फॉलो अप कर रही हैं? हम कोई दहशतगर्द हैं कि जिनको आप फॉलो अप कर रहे हैं और हमारी रिकॉर्डिंग करके, और फिर आप क्या लीक करके क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं? मेरा ख्याल है आज दुनिया में जितने हम शर्मिंदा हैं ना इस बात से, शायद ही कोई शर्मिंदा होगा। यानी किसी को यकीन ही नहीं आता पाकिस्तान के अंदर कोई प्रिवेसी का नामो निशान ही नहीं रहा। फ़ोन बंद कर देनी चाहिए। तो यानी आपने इरादा किया कि आप नंबर नहीं, मैंने तो बंद ही कर दिया अपना नंबर। आपको पता मेरा फ़ोन तो बंद है, तो मैंने मुनासिब समझा कि बेहतर है ना ही बात किया जाए। जब आपकी प्रिवेसी जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाए तो बेहतर होता है कि इंसान बात ही ना करे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, खान साहब ने पंजाब में सिर्फ आपको टिकट जो है वो दी है, तो क्या आप नेक्स्ट CM अपने आप को कंसिडर कर रही हैं? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। मेरा वजह मैं आपको बताऊं, वजह ये है कि हर चीज़ जो है उसको आप सियासत के अंदर आप डे टू डे सोचते हैं कि मैंने क्या कर रहा है। मेरे लिए बहुत अहम है, मैं पंजाब, सेंट्रल पंजाब की सदर हूँ। इस सेंट्रल पंजाब से मैक्सिमम सीटें जीते, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने एक ज़िम्मेवारी दी एक सीट की, मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी एफ़र्ट उस सीट पे भी करूँगी। मैं सिर्फ अपनी सीट पे नहीं, जो 96 लोग मेरे सेंट्रल पंजाब के लड़ रहे हैं उनके लिए भी पूरी मेहनत करूँगी। अभी भी जो आपसे बात करने से पहले एक पूरी मीटिंग बुलाई जिसके अंदर हमने एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जिसके अंदर मैं हर जो हमारे टिकट होल्डर हैं उनसे मैं रब्ता करूँगी, रब्ता करके उनसे कहूँगी कि उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है कि हम बतौर दफ्तर सेंट्रल पंजाब का ऑफिस हम आपका किस तरह मदद कर सकते हैं। हमें अपने कैंडिडेट्स को हेल्प करना चाहिए किसी किस्म के मसले के अंदर, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन के अंदर। हज़ारों मसले बनते हैं। अब देखिए ना, इस वक्त पिछली दफ़ा जब हमारी यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रही थी तो इन्होंने
कभी पहले इस पे पाबंदी नहीं थी कि आप पोलिंग एजेंट्स कहीं से भी बिठा सकते थे। इन्होंने अचानक ये कह दिया कि जी नहीं, सिर्फ उसी हल्के से जहाँ इलेक्शन हो रही है वहाँ के लोग ही बन सकते। तो उस पाबंदी के ऊपर मैंने कोर्ट में चली गई, अपना इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशन डाली, और मुझे शक था क्योंकि हमारे खिलाफ सारे अदारे काम कर रहे थे कि ये कोशिश करेंगे कि ये रुक जाए, मतलब उनका मतलब ये कहीं सिर्फ लिमिट कर दे मैं हल्कों पे। तो मैंने कोर्ट के लिए भी केस तैयार किया हुआ था। तो जिस दिन इन्होंने इनकार किया मैं कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने मुझे रिलीफ दी और फिर इनको इजाज़त देनी पड़ी कि हम कहीं से भी अपने पोलिंग एजेंट जो है, वजह ये है कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो टेक्निकली दे हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट पोलिंग, और पोलिंग एजेंट्स को क्वेश्चन करना इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। और हमें ट्रेन करके उन लोगों को बिठाना चाहिए जो सियासत समझते हैं, जो समझते हैं कि हमने क्या सवाल पूछने हैं और जवाब क्या लेने हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये दफ्तर जो है वो मौजूद है, जस्ट टू इंश्योर कि हर बंदे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, चाहे उनको लीगल हेल्प चाहिए होगी या किसी किस्म की, हम इंशाल्लाह बतौर दफ्तर देंगे हम। सही। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो ना 25 मई को नज़र आए, ना वो किसी भी पंजाब की टीम में नज़र आ रहे हैं, ना किसी कैंपेन में नज़र आ रहे हैं। कौन सा ऐसा बोतल का जिन है उनके पास कि उनका नाम अभी भी बतौर वज़ीर आला जो है वो लिया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात है कि उस्मान बुज़दार साहब 3.5 साल के करीब वो आपको पता है वज़ीर आला रहे पंजाब के, और पंजाब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए उनके दौरानिया में। आप उन चीज़ों को तो नहीं इनकार कर सकती। मैं अगर सेहत के शोबे की बात करूं तो 23 नए अस्पताल शुरू हुए उनके दौरानिया के अंदर। हमने वो अपनी हुकूमत के दौरानिया के अंदर हमने कोई तकरीबन 4 अस्पताल तैयार कर दिए, जो कि आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं किए थे। मियाँ वाली का अस्पताल जो है वो चल पड़ा है, आपको पता है। गंगाराम अस्पताल जो है वो चल पड़ा है। डीजी खान के अंदर कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल जो है वो चल पड़ा है। तो ये वो अस्पताल हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 2-2.5 साल के 3 साल के अंदर बन जाएंगे। तो आपका ख्याल है कि अगर चीफ मिनिस्टर की बैकिंग ना हो तो हमारे लिए आसान होता है ये काम करना। फिर आपको पता है सेहत कार्ड दिए गए पूरे पंजाब के अंदर। इस वक्त 3 करोड़ 11 लाख ख़ानदानों को सेहत कार्ड दिए गए। आज के दिन तक 40 लाख ख़ानदानों ने वो कार्ड इस्तेमाल किया है। डॉक्टर साहिबा, सेहत कार्ड की आप बात करी हैं तो 80 अरब रुपए अभी जो है वो हमने स्टेट लाइफ को देने हैं, और इसके हवाले से आपको पता है कि अस्पताल जो हैं वो ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं कि हम सेहत कार्ड कबूल नहीं करेंगे। तो पीटीआई ने क्या इस मंसूबे के बारे में सोचा नहीं? बिल्कुल ऐसी देखें नहीं, मसला ये है कि किसी, मेरी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, किसी अदारे ने इनकार नहीं किया। सेहत कार्ड इस वक्त चल रहा है, और सेहत कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल रोकनी नहीं चाहिए। इस वक्त जो गुर्बत की सतह जितनी ऊंची हो गई है, अगर इंसान बीमार हो और उसके पास ये सहूलत भी ना हो तो इससे ज़्यादा जुल्म आप कौम पे नहीं कर सकते। ये सेहत कार्ड तो इज्तिमाई बेहतरी की बात की है ना। ये कोई हमने सेहत कार्ड आपका ख्याल है तहरीक इंसाफ के वर्करों को दिए, सेहत कार्ड तो हर बंदे को दिए गए। और अगर ये हुकूमत जिसको बिल्कुल किसी चीज़ की होश नहीं है सवाए अपने आप को बचाने के लिए, अगर होश के नाखून लें तो समझने की कोशिश करें कि सेहत कार्ड का कितना बड़ा फ़ायदा। सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है इन सेहत कार्ड को। यानी दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये पहला मुल्क है जिसने इतना रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है कि कम से कम ये सहूलत तो दे दी है ना बंदे को। जब आपकी ऑलरेडी कम्युनिटी जो है, आपके जो कौम है, वो 70% जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से पे करके और अपनी सेहत की सहूलत लेते हैं। आपने उनको 10 लाख का कार्ड दे दिया है कि भाई ठीक है, हम आपके लिए शायद इतने अस्पताल नहीं बना सकते, लेकिन आपको ये कार्ड दे दिया, आप किसी भी अस्पताल जो हमारे साथ इम्पैनल्ड है वहाँ से जाके अपनी सेहत का इलाज कराएं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया पूछा जाए तो क्या लगता है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे? देखिए, मेरे पास कोई इल्म नजूम तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो ज़रूर हो जाने चाहिए इलेक्शन। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। आपके आइन में ये शिकन है, उसकी आपको इस वजह से इसमें आपका जो क्लॉज है वो कहता है कि 90 दिन के अंदर करना। तो आप क्यों आइन तोड़ रहे हैं? आइन का तो ये मतलब है कि हमने आइन फॉलो करना है। इलेक्शन होने चाहिए। ये डरे हुए हैं असल में इलेक्शन से, भागे हुए हैं इलेक्शन से। घबराहट किस बात की है? तकरीरन सुन सुन के मैं तो मेरे कान वो दुख जाते हैं।
ख़ास तौर पे मरियम बीबी जब खड़े होकर कहती हैं हमने ये कर देना, बोला भाई अगर तुम माशाल्लाह इतने पॉपुलर हो तो फिर परेशानी किस बात की है, इलेक्शन करवा लो, खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, डरने की क्या बात है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और ये भी इनका कहना है कि लाहौर जो है ना वो नून लीग का गढ़ है, नून लीग ये क्लेम कर रही है, तो आप कितनी पुरुमीद हैं अपनी सीट को जीतने? देखिए जी, नून लीग के तो बड़े गढ़ थे, उन सबसे बड़े गढ़े में तो मैं ही बैठी हुई हूँ बतौर कैंडिडेट, तो कोई नहीं। देखिए इलेक्शन लड़ना हमारा काम है, हार जीत अल्लाह ताला ने देनी। ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने ऐसा खूबसूरत इलेक्शन लड़ना है कि सारी दुनिया को याद आ जाएगा। वजह ये है कि हमने इलेक्शन लड़नी सीख ली है। किस तरह सीखी है? इनकी धांधलियां, हम काम क्या करते हैं कि हम इनकी धांधलियां किस तरह रोकें, यानी देखें, बजाय ये करने के कि हमने इलेक्शन किस तरह लड़ने का तो हम तरीका हमें भी आता है, लेकिन हमारा आधी एनर्जी इस पर भी होती है कि रोकनी इनकी धांधली, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी धांधली के साथ ही इलेक्शन लड़ी। इंशाल्लाह अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ना जानती है। ये भूल जाएं वो वक्त जब ये कहते थे ये मम्मी डैडी पार्टी है। ये मम्मी डैडी पार्टी ने आपको बता दिया कि ये सही इनकलाबी पार्टी है जो इंसाफ की तहरीक में यकीन रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा, अगर इन केस खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर पीटीआई क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करेगी, क्या स्ट्रैटेजी देखिए इख्तियार ये करेगी? तो खान साहब भी अनाउंस करेंगे ना, जो स्ट्रैटेजी अनाउंस करेंगे हम इंशाल्लाह वो फॉलो करेंगे ज़रूर। अच्छा, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खान साहब फ्रंट से लीड करेंगे या घर से? क्या करेंगे? क्योंकि अभी खान साहब को काफ़ी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खान साहब फ्रंट से लीड करेंगे या वो घर से? मेरा खान साहब तो अभी भी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। लेकिन ये कि आप घर देखिए पर- ना, थ्रेट्स के बावजूद उनको कोर्ट्स कितना 140 केसेस आप लोगों ने उन पे किए हुए। इस जालिम हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि उनको जितना तंग और परेशान कर सकते करें। वो अपने कोर्टों की उन पे जाते हैं, आपके सामने ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने हमेशा फ्रंट से लीड किया। अगर वो फ्रंट से ना लीड करते तो उनको गोलियां लगनी थी। आपके सामने है ना कि जब वो लॉन्ग मार्च लीड कर रहे थे और उनको गोलियां लगी, और फिर 26 नवंबर को ज़ख्मी हालत के अंदर उन्होंने एफर्ट करके, आपको पता है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी तशरीफ़ लाए। मसला ये है कि इमरान खान एक बहादुर शख्स है, अल्लाह की ज़ात पे उनका पूरा यकीन है, तो इसलिए वो डरते नहीं हैं, इसलिए वो ही विल ओनली लीड फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है और आ जाती है, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, तो क्या होगा? बदलता पंजाब या पंजाब से बदला? देखिए ऑलरेडी खान साहब ने कहना शुरू कर दिया, सबको इंस्ट्रक्शंस है, हम सारे काम कर रहे हैं कि अगर कल अल्लाह ताला हमें मौका देगा तो हमने पाकिस्तान में किस तरह बेहतरी लेके आनी है। इस मकसद के लिए तो नहीं आ रहे कि सिर्फ जीतेंगे, जीत के जब आएंगे तो इंशाल्लाह हालात भी तो बेहतर करने हैं इस मुल्क के। जिन नहर पे इन्होंने पहुंचा दी है उससे वापस भी तो लेके आना है, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं पिछली बार की तरह पंजाब से बदले वाला काम तो नहीं हो जाएगा? क्या होगा? पंजाब से बदले वाला काम तो नहीं हो जाएगा बदलने की बजाय? देखिए मेरा ख्याल है कि पंजाब को मैं तो इस बात पे सोचती हूँ कि क्या नहीं किया पंजाब के अंदर। आप देखिए एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हर किस्म के कदम उठाए गए, चाहे आप एहसास प्रोग्राम की बात करें, चाहे आप उस गरीब आदमी का सोचें कि जो मज़दूरी के लिए आता था, रात को रहने की कोई जगह नहीं होती थी, मुसाफिर खानों की बात करें, आप लंगर की बात करें, आप हेल्थ कार्ड की बात करें, हस्पतालों में बेहतरी लाने की बात करें, हस्पताल नए बनाने की बात करें, तो सब तो करने की कोशिश की गई है ना, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। फिर सबसे बड़ी बात है कि मत भूलिएगा कि 2 साल हमने पेंडेमिक में गुजारे, उस कोविड के पेंडेमिक में जिसमें दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने घुटने टेक लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खड़ा रहा और हालात बेहतर किए। पूरी दुनिया ने हमारी मैनेजमेंट की तारीफ़ की। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, मुझे WHO वालों ने अवार्ड दिया बाकायदा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। तो इससे और क्या बंदा करता है? आप देखिए ना कि कोविड कितना बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को किस तरह फेस किया हमारी हुकूमत ने, और किस वो कहते हैं ना कोलैबोरेटिव, किसी को बीच में से नहीं छोड़ा।
सिंध को नहीं छोड़ा पीछे, सिंध में हमारी हुकूमत तो नहीं थी, हमने तो सब तरफ इकट्ठा हो के और वो जंग लड़ी। तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ है ये वफाक की अलामत है, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाएंगे वापस तो हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह। और लास्ट में कोई पब्लिक मैसेज कुछ भी कहना चाहेंगे आप? देखिए, वोट जो है ना, इससे ज़्यादा अहम अमानत आपके पास कोई नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है वो तब्दील हो, हमारी सोच में तब्दीली आनी चाहिए, और हर वो इंसान जिसका पास वोट है वो इलेक्शन वाले दिन निकल के वोट ज़रूर डाले। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप तहरीक इंसाफ को डालें, मैं कह रही हूँ वोट डालिए, ताकि आप कल ये ना सोचें कि इस पाकिस्तान के हालात तब्दील करने में मेरा कोई हिस्सा नहीं।